नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed 6th Sem and others, course Pedagogy of Civics and others from Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Rajasthan. Students, today our lesson is Evaluation in Civics Teaching, Part 7th, Importance and Need. We will discuss first in English, then after in Hindi. First of all, we start about introduction and others. Evaluations is done to fulfill the following needs and importance. One by one. First point, in first point, sub-point is A. It helps a teacher to know his pupils in details. Today, education is child centered, so child's abilities, interests, aptitude, attitude, etc. are to be properly studied so as to arrange instructions accordingly. B. It helps the teacher to determine, evaluate, and refine his instructional techniques. And C. It helps him in setting, revealing, and clarifying the objectives. D. It helps him to know the entry behavior of the students. And second point, it helps an administrator. In this point, sub-point A, in educational planning, B, in educational decisions on selections, classification, and placement. Third point, education is a complex process, thus there is a great need of continuous evaluation of its process and products. It helps to design better educational programs. Fourth point, the parents are asked to know about the educational progress of their children, and evaluation alone can assess the pupil's progress from time to time. A sound choice of objective depends on an accurate information regarding pupils' abilities, interest, attitude, and personality traits, and such information is obtained through evaluation. Educational evaluations in US visit her. And seventh point is a sound program of evaluation clarifies the aims of education, and it helps us to know whether aims and objectives are attainable or not. As such, it helps in reformulation of aims and objectives. Next, 8 point, evaluation studies the total child and thus helps us to undertake special instructional programs like
enrichment program for the bright and remedial programs for the backward. And next point is it helps us to undertake appropriate guidance services. And next point and last is it helps a student in encouraging good study habits, in increasing motivation, and in developing abilities and skills, in knowing the results of progress, and in getting appropriate feedback. Evaluation is equally helpful to parents, teachers, administrators, and students, etc. This session prepared by 2.0 digital version, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर. लेट्स सी इन हिंदी. आज का जो सेशन है, टॉपिक है, वो है नागरिक शास्त्र शिक्षण में मूल्यांकन भाग 7, महत्व और आवश्यकता. सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना और कुछ पॉइंटों के द्वारा इसके महत्व को, आवश्यकता को जानेंगे. देखिए, मूल्यांकन निम्नलिखित आवश्यकता और महत्व को पूरा करने के लिए किया जाता है. एक एक बिंदु के आधार पर करेंगे, जिसमें पहला है, और पहले में कुछ सब पॉइंट है. पहला सब पॉइंट है, यह विवरण में या इस विवरण में एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को जानने में मदद मिलती है. पहली बात तो ये, आज शिक्षा बाल केंद्रित है, इसलिए बच्चे की क्षमताओं, रुचि, योग्यता, दृष्टिकोण इत्यादि का सही ढंग से अध्ययन किया जाना जरूरी है, जिससे इसके अनुसार निर्देश की व्यवस्था हो सके. बी सब पॉइंट, यह शिक्षक को उसकी अनुदेशात्मक तकनीकों को निर्धारित करने, मूल्यांकन करने और परिष्कृत करने में मदद करता है. सी, यह उसे उद्देश्यों को स्थापित करने, परिष्कृत करने और स्पष्ट करने में मदद करता है. डी, यह उसे छात्रों के प्रवेश व्यवहार को जानने में मदद करता है. इसके बाद में दूसरा पॉइंट है, यह एक व्यवस्थापक की मदद करता है. इसमें 2 पॉइंट, जिसमें पहला है शैक्षिक योजना में, दूसरा चयन, वर्गीकरण और नियुक्ति पर शैक्षिक निर्णयों में. बात करते हैं तीसरे पॉइंट की. थर्ड पॉइंट, शिक्षा एक जटिल प्रक्रिया है, इस प्रकार इसकी प्रक्रियाओं और उत्पादों के निरंतर मूल्यांकन की बहुत आवश्यकता होती है. यह बेहतर शैक्षिक कार्यक्रमों को डिजाइन करने में, तैयार करने में मदद करता है. चौथा पॉइंट, माता पिता अपने बच्चों की शैक्षिक प्रगति के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और अकेले समय समय पर विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करते रहते हैं या कर सकते हैं. पांचवा है, उद्देश्यों की एक ध्वनि पसंद शिष्य की क्षमताओं, रुचि, दृष्टिकोण और व्यक्तित्व लक्षणों के बारे में एक सटीक जानकारी पर निर्भर करती है, और इस तरीके की जानकारी मूल्यांकन के माध्यम से प्राप्त हो सकती है. छठा पॉइंट, मूल्यांकन से हमें ये जानने में मदद मिलती है कि निर्देशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है या नहीं. इस तरह के मूल्यांकन से शिक्षा के लिए बेहतर रणनीतियों को बनाने में मदद मिलती है. सातवां पॉइंट, मूल्यांकन का एक ध्वनि कार्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, और यह हमें यह जानने में मदद करता है कि उद्देश्य और उद्देश्य प्राप्त है या नहीं. जैसे यह उद्देश्य और उद्देश्यों के सुधार में मदद करता है. अगला है 8वां पॉइंट, मूल्यांकन कुल बच्चे का अध्ययन करता है या टोटल सभी बच्चों का अध्ययन करता है. इस प्रकार हमें पिछड़े के लिए उज्ज्वल और उपचारात्मक कार्यक्रमों के लिए संवर्धन कार्यक्रम जैसे विशेष शिक्षण कार्यक्रम शुरू करने में मदद मिलती है. इसके बाद अगला है, यह अच्छी अध्ययन की आदतों को प्रोत्साहित करने, प्रेरणा बढ़ाने और क्षमताओं और कौशल विकसित करने में तथा प्रगति के परिणामों को जानने और उचित प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने में
विद्यार्थी की मदद करता है। इसके बाद अगला और अंतिम जो बिंदु है वो ये कि यह हमें उचित मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करने में भी मदद करता है। देखिए, मूल्यांकन समान रूप से अभिभावक, शिक्षक, प्रशासक और विद्यार्थी के सभी की इनकी मदद करता है। तो ये जो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के चैनल द्वारा तैयार किया गया है, और ऐसे ही आप हमारे इस वीडियो को देखते रहें जिससे सेशन आपके कंप्लीट होते रहें और प्रोग्राम को आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में आप आगे की जानकारी लेते जाइए।